से हाय टू हीली। अब आपको हाय करना पड़ेगा। हाय, थैंक यू। निकोला टेस्ला, ये एक साइंटिस्ट हुए जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइट जला ली थी अपने शरीर से, और इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि आपके बॉडी में इतना एनर्जी होती है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर को आप 7 दिन तक उज्ज्वलित कर सकते हो। और उसके बाद इसका मर्डर हो गया था। इसके बारे में और जानकारी लेना है तो बहुत सारी आप वेबसाइट्स में जा सकते हो, क्वांटम फिजिक्स की किताबों में पढ़ सकते हो कि इनकी मृत्यु क्यों हुई थी। बहुत बड़ी साजिश थी, कुछ बड़े कंट्रीज के कुछ गवर्नमेंट ने मिलके ये सब षड्यंत्र रचा था। ठीक, ये आज भी होता है और जमाने से होता आ रहा है। एल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने बताया था कि फ्यूचर मेडिसिन विल बी द मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। 85 ईयर्स पहले इन्होंने ये बता दिया था। मैं किसी आंटी के पास गया, उनकी 95 ईयर्स ओल्ड एज है। उनके पास जाके मैंने बोला कि आंटी आपके दोनों घुटनों में जो प्रॉब्लम है उसको अपन ठीक कर सकते हैं। बोला कैसे? मैंने बोला मैं एक गैजेट लेके आया हूँ, और ये जो गैजेट है, छोटा सा डिवाइस, इसके माध्यम से आप फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस और एनर्जी लेके सारी चीज़ों को रीजनरेट किया जा सकता है। तो आंटी का रिएक्शन क्या था मालूम है आपको? अच्छा, ये आ गई है क्या? मैं सरप्राइज हो गया। मैं सोच रहा था मैं उनको सरप्राइज करने आ गया हूं, वो मुझे कर दिया उन्होंने। तो मैंने बोला आपकी बात को मैं समझ नहीं पाया आंटी। तो बोले कि हाँ, योगानंद परमहंस ने 1940 में बोला नहीं था, लिख दिया था। उन्होंने 180 लेसन्स लिखे हैं अपने शिष्यों के लिए। उसमें से एक लेसन में उन्होंने पूरा पढ़ के बताया कि क्या लिखा है। I am a devotee of Paramahansa Yogananda, and almost 100 years back, हमारे गुरुदेव ने लिखा है अपने lessons में that a time will come when electronic equipment will be used for healing and not these traditional medicines. I'd like to read out a paragraph from what he has said. Electricity and rays, similarly, will be the medicine of future humanity. These are of a finer nature than solids or liquids, and thus are more subtle forces for healing. These finer forces affect the electronic constituency of the body and harmonize the unbalanced vibratory condition, which medicine are too gross to reach. The rays can penetrate into the germ-disturbed atomic composition of the affected cells. These medicinal and bodily fluids cannot enter. जिसकी आज हम बात करेंगे, जो टेक्नोलॉजी, जो आज जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है, ये जो इसका बेस है वो है क्वांटम इंटेगलमेंट। मतलब क्वांटम तौर पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया। कितना कितना क्लियरली लिखा है। उन्होंने बोला था कि आने वाले युग में लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के माध्यम से फ्रीक्वेंसीज, वाइब्रेशंस, एनर्जीज लेके अपने आप को हील करेंगे, 1940 में। और यही चीज अभी थोड़ी देर पहले स्वामी जी से सुना आपने। I come back to my subject that I had taken up yesterday. I met a scientist in Europe last year, and he's a scientist from NASA, working with astronauts and looking after their health and well-being when they are far away in space. And I asked him that how do you manage with illnesses and diseases in space? When astronauts are living in the space station for 6 months, do they carry suitcases full of medicine with them? In anticipation that I might develop hernia, I might develop blood pressure, I might develop this, I might develop that. Do they carry medication with them? And what happens if they fall sick? He said, Swamiji, we are working on a new system of therapy known as quantum therapy, and which we are successfully using with the astronauts. What is that quantum therapy? He said, it is a computer with a special software
And in the computer, we feed in all the physical parameters, the blood pressure, the heartbeat, the pulse, the temperature, the this, the respiration, all the physical parameters of the astronaut. And the computer assigns a particular frequency to the person. The frequency of that person is captured by the computer. And no matter where the person is on the planet or out of the planet, as long as that person is alive, the computer will continue to pick up that frequency being emitted by the person. And through the computer we can treat the person. If we know that he is going to have headache, we can feed in the information in the computer, and the electromagnets will be beamed from Earth to that person, and that beam of electromagnets will alter the function of his body in space, and he will not have headache. And he said, in this manner we can treat many other illnesses. And we can anticipate by looking at these parameters through regular testing that there is the possibility of this particular disease coming up in this life in future, and treat it. And he further said that hopefully by year 2050 we are working on that. But everybody will be carrying their own personal small computer with them, just monitoring their health and treating themselves. There won't be any need of medicine. There won't be any need of doctor. For major intervention, all these facilities will exist, but every person will have their own personal computer with their frequency. And if you look at it, you feel that headache is coming along, you just run the program for headache, and headache will go away. If you feel low in energy, you zap yourself with feel-good energy, and you will be fine. I said to him, do you know what you are talking about? All the notions of the conventional therapies will come down. They will be destroyed. इन्होंने क्या बताया कि हमारा जो शरीर है, बॉडी, माइंड और सोल के कम्युनिकेशन को अगर आपने स्ट्रांग बना लिया, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, जितने भी डिसबैलेंसेस हैं, वो सबको बैलेंस कर सकते हो. अब कौन सी फ्रीक्वेंसी ट्यून करना है आपको नहीं मालूम. जैसे आप कौन से मंत्र से या किस मंदिर के घंटे से कौन सी वाइब्रेशन लेनी है, क्या आप ले सकोगे? वो हमको नॉलेज ही नहीं है. बस कॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली हमारी जो बॉडी काम करती है, वो कई बार हमको मालूम ही नहीं पड़ता है. कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ले लेती है, लेकिन क्या परफेक्टली ले पाएगी? हमेशा नहीं. इसीलिए चैलेंजेस हैं हमारे साथ. अब ये एक ऐसा टूल बन जाए कि आपको जिस ऑर्गन के लिए, जिस सेल के लिए, जिस जगह के लिए ट्यूनिंग चाहिए, वो ट्यून अगर मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा. ये जो डिवाइस है, ये IMF है. IMF का मतलब होता है इंडिविजुअली माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसीज डिवाइस. इस तरीके से ये काम करती है. बताइए, क्या पूरे पृथ्वी में दो मानव एक जैसे हैं? दो बायोलॉजिकल बॉडी एक जैसी है क्या? नहीं है. कैसे मालूम? क्योंकि किसी के भी रेटिना और फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते. ये तो सिर्फ दो पैरामीटर्स. हमारे ग्रंथों में तो हजारों चीजें लिखी हैं कि एक शरीर दूसरे शरीर से कैसे भिन्न होता है, अलग होता है. हमको तो दो मिल गई ना, तो इसका मतलब प्रूफ हो गया कि एक शरीर दूसरे शरीर के जैसा नहीं होता. तो कैसे फिर आप ट्रीटमेंट एक जैसा दे रहे हो? जैसे किसी का सिर दुखता है तो उसको क्या पैरासीटामोल खिलाया जाता है, दूसरे का सिर दुखता है उसको भी खिलाया जाता है. किसी का सिर दर्द बंद हो जाता है, किसी का नहीं होता. और वो जो पैरासीटामोल फैक्ट्री में बन रही है, कि आपकी बॉडी उसको पहचानती है? और अगर पहचान भी जाती है और ठीक भी हो जाता है, तो वो जो केमिकली बनी है, क्या उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हो आप? और बहुत सिंपल सा सिद्धांत होता है बॉडी का, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी हील इटसेल्फ. आपकी बॉडी में इतना पावर होता है कि वो सारी चीजों को हील कर सकती है.
बशर्त है कि आप उसको डिटॉक्सिफाई कर सको। अब ये बताइए डिटॉक्सिफाई क्या करोगे आप, क्योंकि हमारा शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से। पांचों तत्वों से जो इनटेक ले रहे हैं, अंदर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? जैसे फूड, जिसको पृथ्वी तत्व कहते हैं, भोजन से भी तो गलत चीजें जा रही हैं। अगर अच्छी जा रही हैं तो गलत भी जा रही हैं। पानी से अच्छी जा रही हैं तो गलत भी जा रही हैं। ऑक्सीजन जो ले रहे हो वो भी तो ऐसी ही है। अब ये तीनों चीजें क्या ठीक हैं? अगर ये तीनों चीजें ठीक नहीं है तो आपका अग्नि तत्व डिस्टर्ब नहीं होगा। है 80-90% लोगों के अग्नि तत्व डिस्टर्ब है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 4 चीजें हो गई। पांचवा चीज सबसे इंपॉर्टेंट वो है आकाश तत्व। आकाश तत्व वही फ्रीक्वेंसीज हैं जो सबको ट्यून करती हैं और सब में एनर्जराइज करती हैं हमारे शरीर को, ये चारों तत्वों को। और उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं और बोलते भी नहीं। ये वही चीज है, लेने को तो आप फ्री में ले सकते हो, पर क्या फ्री की वैल्यू है हमको? क्या आपको लेना आता है वो एनर्जीज को? क्या मेडिटेटिव स्टेटस में आप रह पाते हो? क्योंकि लोगों को आपके केवल अपने बारे में अच्छा सोच लो अगर कहा जाए तो लोग अपने बारे में भी अच्छा नहीं सोच पाते। कभी आप मेडिटेशन करिए, सिर्फ आंख बंद करके ध्यान कीजिए, सिर्फ आप अपनी हेल्थ के बारे में सोचिए, नहीं सोचिए अपने वाइफ के या बच्चों के, सिर्फ अपने ही बारे में सोच के बताइए। थोड़ी देर बाद आपको विचार आने लगेंगे, कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे ऐसे विचार आएंगे कि नेक्स्ट, मतलब घर की मोटर तो नहीं चल रही, या हमारा जो चेक आने वाला है कल, किसका चेक आने वाला है, किससे पेमेंट लेना है, बिजनेस की चीजें सोच रहे हो और मेडिटेशन कर रहे हो। ये चीज आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा। बच्चे की याद आने लगेगी, स्कूल से आया कि नहीं। ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, इसका मतलब हम अलाइन नहीं है और यही करना है। और नहीं कर पा रहे हो तो टूल यूज कर लो। सो रहे हो तो भी आपके लिए टूल काम कर रहा है, घूम रहे हो तो भी टूल काम कर रहा है। आपके माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन करने का काम करता है ये छोटा सा गैजेट। अलाइन कैसे? ट्यून रखना है उन्हीं फ्रीक्वेंसीज से। यही कहा था, फ्रीक्वेंसीज आर द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, हाउ योर बॉडी, माइंड, सोल कम्युनिकेट विथ ईच अदर। किसने कहा था? निकोला टेस्ला, जिसके आज हम जितनी भी वायरलेस चीजें यूज करती हैं उसी के नाम पे पेटेंटेड है। अब हम समझते हैं हमारे शरीर को। शरीर के किसी भी भाग को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखो, चाहे फिंगर टिप्स हो, चाहे ये हाथ की हथेली हो, या पेनक्रियाज हो, किडनी हो, लिवर हो, पैर हो, सिर हो, कोई भी चीज हो फिजिकल फॉर्म में, अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो हमारे ऑर्गन बने हुए टिश्यूज से, टिश्यूज बनते हैं सेल से, सेल बनते हैं मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, एटम बनते हैं एटॉमिक सब पार्टिकल से, और वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं? एनर्जीज होती हैं। अगर ये एनर्जीज हैं तो वाइब्रेशंस भी होंगी, और वाइब्रेशन है तो फ्रीक्वेंसी भी होगी, और फ्रीक्वेंसी को नापा जाता है हर्ट्स में। आ गए हम एनर्जी बॉडी में। तो शरीर के किसी भी भाग में आप जाओ, जैसा बायोलॉजिकल बॉडी होता है एग्जैक्टली वैसे ही हमारा एनर्जी बॉडी होता है, सेम। इन दोनों की ट्यूनिंग को, इन दोनों की जो भाषा होती है वो हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, संस्कृत नहीं होती। इनकी भाषा होती है फ्रीक्वेंसीज की। कभी कभी बहुत सुंदर सा पंजाबी गाना आपने सुना तो नाचने का मन करता है, होता है? समझ में आया नहीं है क्योंकि आपको पंजाबी आती नहीं है, लेकिन आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आती है जो आपको अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लगना या बुरा लगना, यही तो फ्रीक्वेंसीज है। अगर अच्छा लग रहा है तो बुरा भी लगता होगा। एक आदमी को एक नेगेटिव वाइब्रेशन आती है और वो सुसाइड कर लेता है, होता है? इसका मतलब है वाइब्रेशंस ही आपको चला रही हैं, और आपका शरीर वो वाइब्रेशंस को डिजिटल फॉर्म में लेता है जो दिखती नहीं है। शरीर के जब हम डिटेल में जाते हैं और लास्ट में हम देखेंगे तो वो आपको मिलती है इंफॉर्मेशन फील्ड, वही है आपकी एनर्जी बॉडी है। और शरीर के रोम रोम में है, रोम रोम में राम, कण कण में शंकर, यही चीज है वो सेल मेम्ब्रेन के पोटेंशियल का हाई होना। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमारा बॉडी है, हमारे जो शरीर में, आप जब सुबेरे सो के उठते हो तो आपका सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चार्ज रहता है। कुछ हेल्दी सेल यहां होता है जब सुबेरे सो के उठते हो, वही सेल दिन भर एक्टिविटी करने के बाद शाम को सेल डेथ होती है। सेल डेथ होती है, सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन होने के बाद शरीर से वो क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। ये रोज होते हैं हमारे शरीर में, जो कि माइनस में होता है और मिली वोल्ट में हो। इसको नापा किस में जाता है? मिली वोल्ट में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल को नापा जाता है। और वो मल्टीप्लाई हो डिवीजन की जगह, तेजी से बढ़ने लगे तो क्या होता है?
सिस्ट, शरीर में जो सिस्ट हो जाती हैं वो उस कारण से होती हैं। ये इस पोजीशन में तो फिर भी ठीक है, आपके शरीर में गांठें बन जाएंगी, ठीक, सिस्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर यहां से ये प्लस में निकल जाए तो वो सेल हो जाता है कैंसरस। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो महान साइंटिस्ट हैं उन्होंने कहा है, और किसी भी डॉक्टर से आप पूछोगे तो आपको यही बताएगा। मैं बोला अब इसको यहां से वापस यहां लाना है तो कैसे करोगे? ये वही टेक्नोलॉजी कर सकती है जो बता सकती है। और आपने थोड़ी देर पहले देखा था क्वांटम सेंसर के बारे में, जो 10 टेक्नोलॉजी, क्वांटम सेंसर का काम ही है। और आप लोगों ने देखा होगा पिछले 50 साल से क्वांटम सेंसर के कई प्रोडक्ट यूज किए हैं हॉस्पिटल्स में। आपने सिटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, ये सब यूज किया है। ये सब किससे चलता है? ये सब चलता है क्वांटम सेंसर से। लेकिन ये सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं ये बताने में तो सक्षम है, क्या ठीक करने में है? क्योंकि ठीक करने में तो इनका उपयोग किया ही नहीं गया, सिर्फ बताने के लिए, इंफॉर्मेशन पास करने के लिए किया गया। तो उन्होंने पिछले 50 साल से ये प्रूव भी किया है कि वो सबसे बेस्ट रिपोर्ट देते हैं, और जो जड़ों को बता सकता है कारण, वही तो ठीक कर सकता है। तो ये क्वांटम सेंसर का ही प्रोडक्ट अब हीलिंग मोड पे आ गया है। कौन सा? ये छोटा सा डिवाइस। इस डिवाइस के बीचों बीच क्वांटम सेंसर लगा हुआ है। और क्वांटम सेंसर के बारे में अगर आप मुझसे पूछो कि एक लाइन में बताना है कि व्हाट इज क्वांटम सेंसर, तो मैं बताता हूं क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक गॉड। जैसे आप ईश्वर से कुछ बोलते हो कि मेरा ये काम हो जाए, और वो हो जाता है, तो दूसरे दिन गॉड के पास जाके क्या पूछते हो? कैसे किया, या थैंक्स, थैंक्स। तो इसका मतलब है आप लोग भी मुझसे पूछना नहीं कि क्वांटम सेंसर कैसे काम करता है, क्योंकि क्वांटम सेंसर की सबसे बड़ी थ्योरी किसने लिखी? एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका ब्रेन 4.5% काम करता था। आप और हमारा तो सिर्फ 1%, लेस देन 1%, करेक्ट। अब उन्होंने तो पूरी थ्योरी लिख डाली उसके ऊपर। 1955 में जब मृत्यु हुई थी तो उन्होंने लास्ट में अपनी थ्योरी की क्या लिखा था? क्वांटम के विरोध में लिखना शुरू किया था, और कई प्रोडक्ट बना डाले, और लास्ट में लिखते हैं क्वांटम वर्क्स बट हाउ इट वर्क्स आई डोंट नो। ये वो साइंटिस्ट थे। उसके बाद कई साइंटिस्ट और आए, उन रिसर्च को आगे बढ़ाया। इस फील्ड में मिस्टर मार्कस किमीके थे, जो एक जर्मन साइंटिस्ट हैं। उन थ्योरी को आगे बढ़ाते बढ़ाते क्वांटम के कई प्रोडक्ट बना डाले कई लोगों ने, इन्होंने भी बना लिया। ये जो छोटा सा डिवाइस है ये क्वांटम बेस्ड डिवाइस है। एक डिवाइस यहाँ ऑलरेडी काम कर रहा है आप सबके साथ, आप सबकी एकाग्रता को मेंटेन कर रहा है वो। क्योंकि जब भी प्रोग्राम लेता हूँ मैं सबसे पहले नेगेटिव क्लींजिंग लगा देता हूँ, नेगेटिव एनर्जीज को क्लीन करना। नेगेटिव एनर्जी बहुत डेंजरस होती है। आपको कोई अच्छी चीज बताए तो आप उसके विरोध में शुरू होते हो सोचना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर होता है। अगर विरोध में रहेगा तो क्या सही सोच पाएगा? कभी नहीं। जैसे इस बॉटल में ये ब्रेन है आपका, अगर इसमें पानी डालना है मतलब कुछ नॉलेज डालना है, ये नॉलेज है आपका, तो इतना ही नॉलेज जा पाएगा ना। अगर ये खाली हो जाए तो पूरा नॉलेज जाएगा। बस यही काम कर रहा है वो। तो आप इसको ध्यान से सुनो, समझो। आपको ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि मैं बेचने नहीं आया हूं। आई एम नॉट अ सेल्समैन, आई एम मैसेंजर ऑफ हैप्पीनेस। आई विल गिव यू द इंफॉर्मेशन, आई कैन गिव यू द हाउ टू यूज इट। बाकी ये डिसीजन आपको लेना है कि आपको ये खरीदना है कि नहीं खरीदना है। मैं सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। ये जो आपको दो बॉडीज के बारे में बताया, एक है बायोलॉजिकल बॉडी और एक है एनर्जी बॉडी, इन दोनों के बीच की फील्ड को कहते हैं बायो एनर्जेटिक फील्ड, करेक्ट। अब ये बायो एनर्जेटिक फील्ड अगर आपकी अलाइन है तभी आपकी बॉडी ठीक रहेगी। एनालाइज करता है और डिलीवर करता है, फिर एनालाइज करता है, फिर डिलीवर करता है। ये काम कंटिन्यूअसली करता है। जैसे इसके अगर आईएमएफ प्रोग्राम्स लेते हैं, आईएमएफ प्रोग्राम्स का मतलब होता है इंडिविजुअली माइक्रोकरेंट फ्रीक्वेंसीज। आपको आपकी बॉडी के हिसाब से, मेरी बॉडी के हिसाब से, ऐसे अनगिनत लोग हैं इस दुनिया में, उनके सबके इंडिविजुअल लेवल पे काम कर। 80% टाइम वो रेजोनेंस मोड में चलेगा। रेजोनेंस मोड का मतलब होता है एनालाइज करेगा और जो चाहिए उतना ही देगा। क्यों? क्योंकि एआई यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एग्जैक्टली उतना ही देगा जितना बॉडी को चाहिए, और बॉडी उतना ही लेगी। बॉडी के पास भी एआई है उसका, लेकिन अभी क्या हो गया, वो सबड्यूड हो गया। इसीलिए हम ले नहीं पाते, क्योंकि आप जाते तो हो मंदिर मस्जिद सब जगह, लेकिन वहां से कुछ ले नहीं पाते हो, क्योंकि आपके जो एआई है वही डैमेज है। बॉडी माइंड और सोल का कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाना,
करेक्ट। तो आप ये जब यूज करने लगते हैं तो आपके ऑर्गन्स क्या करते हैं, आपकी बॉडी खुद ही काम करने लगती है, ऑटो मोड में आने लगती है। धीरे धीरे जनरेशन्स जो जा रही हैं, कैसी जा रही हैं, वीकर जनरेशन जा रही हैं। आप खुद एनालाइज करो कभी ठंडे दिमाग से सोच के कि अगर आप अपने दादाजी से मिले थे तो उनका एनर्जी लेवल क्या था, आपके पिताजी का क्या था, आपका क्या है, और आपके बच्चों का क्या है, और आपके बच्चों के बच्चों का क्या है। आप देखोगे कि जनरेशन, हम वीकर जनरेशन पैदा कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, इसको आप अगर मंथन करोगे तो आप समझ जाओगे कि प्रोडक्ट कितना यूनिक और डिफरेंट है। ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है। इनके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें बताऊंगा। इनके विचार किस तरह के हैं, जैसे विचार होते हैं वैसे ही आदमी बनता है। इनके क्या विचार थे 14-15 साल की उम्र में। इनकी किताब एक जरूर आप लोग पढ़िएगा, सेकंड पाथ। सेकंड पाथ का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जो है ना अभी फर्स्ट पाथ में, मतलब रोज जाते हैं काम करने और काम करा के कुछ पैसे कमा लेते हैं और उससे अपना जीवन चला रहे हैं। ये पहला पाथ है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा पाथ है हमारे कार्मिक बैलेंसेस, वो सेकंड पाथ है। क्या आप लोग में से कोई है जो सेकंड पाथ के बारे में सोचना शुरू कर चुका है? और वही सोच सकता है जो फर्स्ट पाथ से क्लियर हो चुका हो। उसको ये मालूम हो कि उसको पैसे की अब जरूरत नहीं है। अगर जरूरत अभी भी है तो आपको वो पाथ पूरा करना पड़ेगा, तभी सेकंड पाथ में पहुंचोगे। तो कर लो उसको 2-4-6 महीने में, 1 साल 2 साल में, और आपकी स्पीड के ऊपर है। कैसे करना है उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा मैं। मिस्टर मार्कस मीकर 14 साल की उम्र में उनको विचार आया, क्या ग्रैंड स्लैम विनर जो होते हैं ना, चेस खेलते हैं, 25 लोग बैठे थे सामने। ग्रैंड स्लैम ऐसी 25 लोग होते हैं, ब्लाइंड फोल्ड खेला जाता है, मतलब आंखों में आपकी पट्टी बांध दी जाती है और 25 लोग ओपन आंखों से खेल रहे होते हैं आपके साथ, क्या शतरंज, जिसको हम चेस कहते हैं। मतलब आपको, आपकी आंख में पट्टी बंधी है और 25 लोगों को आपको हराना है और आप जीत जाते हो सबसे। आंखों में पट्टी है, मतलब क्या मेमोरी होगी, कितने न्यूरॉन्स उनके एक्टिवेट होंगे ब्रेन के, समझ रहे हैं आप लोग। और 25 को हरा देना, उसको कहते हैं ग्रैंड स्लैम विनर। 14-15 साल की उम्र में इन सज्जन की। और जब फाइनल था तो गए नहीं। उनसे पूछा गया क्यों नहीं गए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मतलब अभी आप कॉन्शियसनेस और सब कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे, ये मैं 14 साल की उम्र में, जो आज आप सोच रहे हो, वो 14 साल की उम्र में उनके विचार आ गए थे कि किसी 25 लोगों को अगर मैं हराऊंगा तो उनकी जो वाइब्रेशंस होंगी वो मेरे लिए पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव होंगी। शतरंज खेलना छोड़ दिया, वायलिन बजाने लगे। अब बताओ, वायलिन कोई बजाएगा तो उसको बुरा लगता है किसी को? इसीलिए कहा जाता है म्यूजिक जो होता है वो गॉड के प्रति सबसे ज्यादा एनलाइटमेंट करने के लिए काम आता है, बस इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। मिस्टर मार्केस 20 साल की, अब सोचो कैसे विचार है उनके 20 साल के उम्र में, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। युवा अवस्था, 20 साल का आदमी का ब्रेन कैसा होता है, खुला हुआ। जैसे जैसे एज बढ़ जाती है हमारी, क्या होते हैं, न्यूरॉन्स हार्ड हो जाते हैं। अगर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स हार्ड होंगे तो आप ग्रास्प कम करोगे या रिजिड हो जाओगे, चीजों को सुन नहीं पाओगे। कई लोग हैं जो 80, 90, 100 साल की उम्र में भी इतने सॉफ्ट होते हैं कि किसी को भी सुन लेते हैं और समझ भी लेते हैं। क्या वो सब हो जाते हैं? बहुत कम लोग हो पाते हैं। तो वो उस लेवल का 20 साल की उम्र में एक विचार आता है उनको। कैसे? कलकत्ता के पास में एक जगह है मायापुर। मायापुर के एक संत गए हुए थे जर्मनी, और वहां प्रवचन दे रहे थे किसके ऊपर? गीता के ऊपर। इन्होंने क्या किया था, मायापुर में जब सुना मायापुर के उस संत को, तो उनके पीछे पीछे आ गए 20 साल की उम्र में। और हमारे देश में उस मायापुर में 12 साल तक रहे। 20 साल की उम्र में आए थे, 32 की एज में वापस जाते हैं और जाके मिलते हैं क्रिश्चियन हेल्पर से, क्योंकि ये तो सन्यासी जीवन जी रहे थे, कुछ पैसे वैसे थे नहीं। तो इन्होंने कहा, क्योंकि ये क्या है, को फाउंडर है हीली के, इनका बैकग्राउंड है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का, उसके बाद है एंटरप्राइजेज, मतलब वो एक कंपनी भी चलाते हैं। किसके? सुपर फंड के मालिक हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, पढ़े लिखे हैं। अब उन्होंने जब कॉन्सेप्ट बताया कि मैं इंडिया में जाके यहाँ वेदों का अध्ययन किया, मुझे मालूम पड़ा कि वाइब्रेशंस होती क्या है, वाइब्रेशंस किस लेवल में काम करती हैं हमारी फिजिकल बॉडी में। वो जब सारी चीजें सुनी तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला जितने पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा, आप जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाहो करो। फिर उन्होंने लगभग 2007 में
बहुत बड़ी बड़ी डिवाइसेस बना ली, काफी बड़ी डिवाइसेस, और पिछले 15 साल से उन डिवाइसेस से लोगों को हीलिंग दे रहे थे। और वर्ल्ड के 45 कंट्रीज में, इंडिया में 2007 से है ये टेक्नोलॉजी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं अभी। 2007 से लेकर अभी तक वो यूज किया जा रहा है। तो ऐसे साइंस हैं, ये सब साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस, और हम लोग उसको मैजिक समझते हैं। मैजिक क्या है? एवरीथिंग इज मैजिक। अच्छा ये बताइए, आज सुबह जब सो के उठे थे तो आपको मालूम था कि सुशील गर्ग नाम का एक इंसान है जिससे मैं बात करूंगा? तो ये मैजिक नहीं है क्या? अब इसमें लॉजिक ढूंढते रहो कितना भी, पर मैजिक तो है ये। और मैजिक की हमेशा अनंत होता है, हर जगह है मैजिक। दुनिया में ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जिसके पीछे लॉजिक नहीं है, पर आपको नहीं मालूम है इसीलिए आप उसको मैजिक कह रहे हो। जो लॉजिक होता है ना, उसको सीमित होता है, रिस्ट्रिक्टेड होता है, कम होता है वो, और हमारा ब्रेन है लॉजिकल। अब जिसका ब्रेन लॉजिकल है वो सीमित है, लेकिन मैजिकल ब्रेन अगर उसने यूज करना शुरू कर दिया तो अनंत सोच सकता है। अभी हम 1% भी यूज नहीं कर पाते अपने ब्रेन को। अगर इस मैजिकल ब्रेन को आप यूज करने लगो, आप एक मूवी जरूर देखिएगा, लूसी, देखिए किसी ने, मजा आ जाएगा आपको। ब्रेन को कैसे यूज किया जाता है और कैसे वो करने लगती है और किस तरीके से वो करती है, देखा है आपने? मजा आया? जरूर देखिएगा। सर, कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस की हम लोग बातें कर रहे हैं, और वो मूवी जीता जाता है एग्जाम्पल है इसका, और ऐसी कई मूवीज हैं। मिस्टर मार्कस मीके मायापुर से गए हुए थे, उन संत को सुनते हैं, और ये एपिसोड जब सुनते हैं तो देखते हैं कि ये तो क्वांटम फिजिक्स की बात कर रहे हैं, कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी हैपेंड, सब कुछ हो चुका है। मतलब महाभारत का युद्ध भी हो चुका है, आपको एक्सेस नहीं मिला है, इसका मतलब ये जो हम मीटिंग कर रहे हैं ये भी तो हो चुकी है। एक्सेस आज मिला है हम सबको एक साथ, आपको मुझे, इसीलिए हम उस परिवेश में हैं, उस समय में हैं, इसीलिए हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। जो आने वाला था वो नहीं आ पाया, वो इस परिवेश में नहीं है। यही तो है, इसी को कहते हैं क्वांटम इंटेगलमेंट। कैसे क्वांटम इंटेगलमेंट कैसे होता है? जो अणु होता है, सबसे सूक्ष्म अणु को 2 भाग में कर दो और उसके बीच में 1 मीटर का डिफरेंस रखो। इसको आप घुमाओ क्लॉकवाइज, यहां क्लॉकवाइज नहीं, यहां एंटी क्लॉकवाइज वो घूम रहा होगा। अब इसके डिस्टेंस को बढ़ा दो, यहां से कर दो 10,000 किलोमीटर, यहां आप घुमाओ उसको क्लॉकवाइज, वहां वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। अब इसको कर दो कुछ और दूर, मतलब हमारी पृथ्वी से ही बाहर कर दो, और यहां घुमाओ उसको क्लॉकवाइज, वहां घूम रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज इमीडिएटली। कोई उसको ट्रैवल करने में समय नहीं लगता। जैसे मन, ये कहलाता है क्वांटम इंटेगलमेंट। ये होता है, इसको ट्रैवल नहीं करना होता। ये टेक्नोलॉजी है। ये स्पेस में कोई जा रहा है साइंटिस्ट 6-6 महीने के लिए, तो क्या 6 महीने का राशन लेके जाता है? फिर कैसे जाता है? कभी विचार नहीं आया? सुपर कंप्यूटर में सारे पैरामीटर्स डाले जाते हैं, और वो पैरामीटर्स यहां से कंट्रोल होते हैं, और वहां वो है सारी चीजें, और वही चीज आपके हाथ लग जाएगी एक आम आदमी के। जब पहली बार मैंने इसके बारे में सुना तो मैं तो सुनता ही रह गया। फिर मैंने बोला कि मुझे 3.5 साल से माइग्रेन है, सिर दर्द देता है 24 घंटे, जो भी मेरे बिजनेस का स्ट्रेस या जो भी रहा होगा उसके कारण। मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम लिया था सर, माइग्रेन का एक प्रोग्राम रन किया 20 मिनट का, और मेरे को रिलैक्स हो गया। अब मैंने अपने ऊपर ही शक हो रहा है कि 3.5 साल से रात को 2 बजे भी अगर मैं सो के उठता था तो रात को भी दुख रहा है, सुबह भी दुख रहा है, फैक्ट्री जा रहा हूं तो भी दुख रहा है, फैक्ट्री से आ रहा हूं तो भी दुख रहा है, फैशन शो में हूं तो भी दिख रहा है, हमारा डिस्पैचेस हो रहे हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, कटिंग हो रही है, सैलरीज बांट रहा हूं, सब कुछ में मेरा सिर दुख रहा है 24 घंटे। वो स्टेज से, एक प्रोग्राम से इतना रिलीफ। मैं 1 घंटे तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा, कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा था कि शायद हो सकता है साइकोलॉजिकली लग रहा। 1 घंटे बाद मैं इसकी तारीफ करने लगा, और मैंने डिसीजन ले लिया कि मैं अब इसको पूरी दुनिया में, पूरे हर घर में पहुंचाऊंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा। अगर आपको समझ में आता है आप इसका इस्तेमाल करिए, क्योंकि 14 दिन की मनी बैक गारंटी के साथ मिलता है। 14 डेज यू कैन यूज इट। नहीं समझ में आया, पैक इट, रैप इट एंड सेंड इट बैक। योर मनी विल कम ऑटोमेटिकली इन योर अकाउंट विदाउट एनी रिमाइंडर। किसकी? क्यों? क्योंकि किसकी कंपनी है ये? मिस्टर मार्कस मीके की। किस लेवल का सोचते हैं आप समझ गए होंगे। और
पास्ट इतिहास देख सकते हो जर्मन्स का कैसा रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में आज तक फेल नहीं हुए, दी बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए हैं वर्ल्ड के, और हमारे ग्रंथों के ऊपर अध्ययन भी वही कर रहे हैं, हमारे ही ग्रंथों से निकाल के बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। कौन कौन सा करना है वो भी आपका मोबाइल ही बता देगा। क्यों? क्योंकि उसमें एडवाइजर ऐप है, उसमें डालिए आपको सारे प्रोग्राम्स आ जाएंगे, उसके प्रोग्राम सुबह शाम लेते रहिए और खूब हाइड्रेट रहिए, खूब पानी पीजिए। IMF प्रोग्राम जब रन करते हैं हम, तो हमारे बॉडी में 2 परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से? आपका शरीर टिश्यूज से बना है, 2 टिश्यूज को जोड़ने का काम कौन करता है? एमिनो एसिड, करेक्ट? अब बताइए 2 टिश्यूज, आपका शरीर कितने सारे टिश्यूज से बना हुआ है? अब 2 टिश्यूज को जोड़ने का काम अगर एमिनो एसिड कर रहा है तो वो मजबूत होना चाहिए। जैसे इस बिल्डिंग को जब बनाया होगा तो 2 ईंट को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज किया है तो मजबूत हुआ। एक के ऊपर एक ईंट भी तो रख सकते थे लेकिन वीक रहता। ऐसे ही हमारा शरीर है, तो 2 टिश्यूज को जोड़ने का काम करता है एमिनो एसिड, वो अप टू 40% बढ़ जाता है ये प्रोग्राम लेने से। और सेकंड, जो प्रोटीन सिंथेसिस है हमारी बॉडी में, जैसे ये बिल्डिंग जब बनाई थी तो 2 ईंटों को जोड़ने का काम तो करा सीमेंट ने, फिर बाद में प्लास्टर भी तो किया मजबूती के लिए। तो वो कौन काम करता है हमारे शरीर में? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस अप टू 70% बॉडी में बढ़ जाता है। जब ये दोनों चेंजेस आते हैं तो आपका एटीपी प्रोडक्शन जो होता है वो 500 टाइम्स तक बढ़ जाता है बॉडी का। और वो जो एटीपी प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है? जब आपका देखिए ये 2 जो चेंजेस आते हैं तो आपका बॉडी मजबूत होता है। मजबूत होता है तो रात को डीप नींद आएगी। जो कमजोर शरीर होता है उसको रात को नींद नहीं आती। जिसका शरीर वीक होता है उसको नींद नहीं आती, सबसे पहले नींद में प्रॉब्लम आती है। तो क्या करता है वो? नींद की गोलियां खाने लगता है। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो ज्यादातर आपको पेशेंट दिखेंगे कैसे? जो रात भर लाइट जलती रहती है, नींद ही नहीं आती। फिर डॉक्टर क्या देता है उसको? कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन देता है जिसमें नींद की दवा मिली होती है। फिर वो किसी तरह सो जाता है, सुबह उठता है तो भी एनर्जी लेवल लो ही रहता है उसका, क्योंकि डीप नींद नहीं मिली है, उसको बेहोश किया गया है। 2 तरीके के प्रोग्राम दे रहे हैं इनको। एक और टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं मैग हीली। मैग हीली उनके घुटनों में रखी गई है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड में भी काम करती है। मतलब बायोलॉजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी के अलावा एक तीसरी चीज और हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये मैग हीली में। इसमें हम किसी भी तरह के करीब 86 तरीके के प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं। इवन इस एटमॉस्फेयर को भी हमने अभी थोड़ी देर पहले चेंज किया, करीब 1 घंटे से वो प्रोग्राम रन हो रहा था। नेगेटिविटी को क्लीन किया हमने कि लोग सुने। तो आप सुन रहे हो, सुनना बहुत जरूरी है और ओपन माइंडेडली, तभी आपके क्वेश्चंस आएंगे। अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपके आंसर मिलेंगे, अगर आंसर मिल जाएंगे तो आप इस डिवाइस को मना नहीं कर पाओगे। और मैं बोलता हूं तो भी मना कर देना, पहले 14 दिन इस्तेमाल तो कर लो। अगर आपने 14 डेज तक इसको इस्तेमाल कर लिया और ईमानदारी से सुबह शाम, तो आप इसको रिटर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कितना पावरफुल है ये। हीली जो है ISO 13485 सर्टिफाइड मेडिकल गैजेट है। इसकी जो ग्रेडिंग है 13485 की है। अब ये बताइए ISO 13485 जस्ट गूगल में आप डालिए कि ये होता क्या है, तब आपको मालूम पड़ेगा कि नॉर्म्स कितने मजबूत हैं इसके। अब बताइए ये जो MRI मशीन, CT स्कैन मशीन, एक्सरे मशीन, ये जितनी भी मशीनें हैं ये यही सर्टिफाइड है ISO 13485। अब इस डिवाइस को एक चीज और एक्स्ट्रा मिली हुई है, वो है क्लास 2A मेडिकल डिवाइस। ये लिखा है क्लास 2A मेडिकल डिवाइस का मतलब क्या होता है? इससे किसी भी ह्यूमन का कोई नुकसान नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी यूज कर सकता है। जैसे CT स्कैन मशीन, MRI मशीन और एक्सरे मशीन, इसको यूज करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और अगर गलत ट्रेन करेंगे तो आपकी बॉडी को डैमेज कर सकता है। लेकिन इसमें अगर आपने गलती से गलत प्रोग्राम भी ले लिया तो आपकी बॉडी, क्यों? क्योंकि AI है इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सब मालूम है। आपको और मुझे हमारे घर के छत में क्या पड़ा है नहीं मालूम, लेकिन AI को मालूम है। गूगल के AI से पूछोगे ना तो बता देगा कि कहाँ क्या पड़ा हुआ है। ये इस लेवल का काम करता है। और AI आने के बाद इस युग में, इस पूरी दुनिया में चेंजेस आ रहा है, क्रांतिकारी चेंज। कैसे? ये जो डिवाइस इन्होंने मिस्टर मार्कस मीके ने बड़ी बड़ी बनाई थी, इसको छोटी सी डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया। कब? 2019 में। मतलब पिछले 15 साल से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉम्बे, दिल्ली, अपने हैदराबाद में भी हो रही है।
ये सब लोग यूज कर रहे हैं इसको, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं। लेकिन एआई कब आया? 2019 में। और जो बड़ी डिवाइस थी उसको कन्वर्ट कर दिया छोटी सी डिवाइस में। एआई बेस्ड डिवाइस है ये। गूगल के सीईओ का अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा। Last year at Google I/O, we announced Google AI. It's a collection of our teams and efforts to bring the benefits of AI to everyone. And we want this to work globally, so we are opening AI centers around the world. AI is going to impact many, many fields. And I want to give you a couple of examples today. Healthcare is one of the most important fields AI is going to transform. Last year, we announced our work on diabetic retinopathy, which is a leading cause of blindness, and we use deep learning to help doctors diagnose it earlier. And we've been running field trials since then at Aravind and Sankara hospitals in India, and the field trials are going really well. We are bringing expert diagnosis to places where trained doctors are scarce. It turned out, using the same retinal scans, there were things which humans quite didn't know to look for, but our AI systems offered more insights. Your same eye scan turns out holds information with which we can predict the 5-year risk of you having an adverse cardiovascular event, heart attack or strokes. So to me, the interesting thing is that, more than what doctors could find in these eye scans, the machine learning systems offered newer insights. This could be the basis for a new non-invasive way to detect cardiovascular risk. And we just published the research, and we are going to be working to bring this to field trials with our partners. Another area where AI can help is to actually help doctors predict medical events. Turns out doctors have a lot of difficult decisions to make, and for them, getting advance notice, say 24 to 48 hours before a patient is likely to get very sick, has a tremendous difference in the outcome. And so we have put our machine learning systems to work. We've been working with our partners using de-identified medical records. And it turns out if you go and analyze over 100,000 data points per patient, more than any single doctor could analyze, we can actually quantitatively predict the chance of readmission 24 to 48 hours before, earlier than traditional methods. It gives doctors more time to act. We are publishing our paper on this later today, and we are looking forward to partnering with hospitals and medical institutions. अगर आप मायापुर जानते हैं, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास में एक जगह है जहां पे इस्कॉन का हेडक्वार्टर है। वहां अगर आप जाएंगे तो पिछले 15 साल से टाइम वेवर कंपनी का, हमारी कंपनी का, करीब 55 कंट्रीज में दे हैव देयर ओन ऑफिसेज, खुद के ऑफिसेज हैं। ये कभी किसी को फ्रेंचाइजी नहीं देते। जैसे दुनिया में आपने कितनी भी चीजें देखी होंगी, लोग क्या करते हैं, दूसरे कंट्री में वहां के किसी को फ्रेंचाइजी दे देते हैं। ये फ्रेंचाइजी नहीं देते, इनका खुद का ही सेटअप होता है सब कुछ, क्योंकि ये है एआई बेस्ड। ये एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, खुद ही चलाया जाता है। एक बार बना लिया बस, ऑटो मोड में ही चलना है, सब एआई बेस्ड है। 2500 प्रोफेशनल यूजर है। इसका ये डेटा थोड़ा पुराना है, लगभग अभी 5,500-6 हजार लोग हैं प्रोफेशनल यूज करते हैं। जो क्वालिटी के मामले में ये मेड इन जर्मनी है, तो अपने आप में ये प्रमाणित है। दूसरी चीज, इसका बेस जो है वो साइंस का मतलब होता है कोई भी चीज को प्रूफ कर देना। पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, नेक्स्ट 15 साल कोई यूज नहीं कर सकता। अब IMF पूरी दुनिया में एकमात्र यही डिवाइस है। आने वाले 15 साल आपको ऐसी टेक्नोलॉजी मिलने वाली है जो सिर्फ आप यूज कर सकते हो। तो सोचो कितना बड़ा ये अलादीन का चिराग है। इसीलिए मैंने 2 फैक्ट्रियां अपनी खुद की अगर छोड़ सकता हूं तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा विजन होगा मेरा यहाँ। क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो फैक्ट्री काफी थी, क्योंकि मेरे सेकंड पाथ में जाने के लिए इससे अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। किसी के घर में अगर इनकी घुटने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी कुछ 2-3 महीने यूज करने के बाद, तो ये मुझे दुआएं देंगी कि बददुआएं? अब ये बताओ कौन सा पैसा खरीद सकती हैं ये दुआओं को? है कोई पैसा? आप किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्या ले रहे हो? उसके बदले में पैसे ले रहे हो। और वो अगर ट्रीटमेंट फेल हो जाता है तो बददुआएं देता है आदमी।
और मैं आपको ये दे रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये 100% काम करता है, इसीलिए दे रहा हूं। अब इसके प्रोडक्ट के पेजेस के बारे में बताऊंगा। वंडरफुल चीजें, आप जितना सोच सकते हो वो सोच लो अपने बॉडी के डिसऑर्डर या आपके नियर एंड डियर के डिसऑर्डर। जब ये डिवाइस आता है हमारे घर पे तो कुछ इसके साथ चीजें और आती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको काम आती हैं, जैसे आपने देखा ना जो एसेसरीज हैं, मतलब एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। जो कॉस्ट बताई जाएगी उसमें यू विल गेट एवरीथिंग, डिवाइस, एसेसरीज एंड प्रोग्राम्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोग्राम्स। सबसे शरीर में क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? ये तो बायोलॉजिकल बॉडी जो है, ये क्या है? ये आपकी हार्डवेयर है। हार्डवेयर के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं मैं। वो आपको जो सॉफ्टवेयर मिलेगा वो जीवन भर के लिए होगा, लाइफ लॉन्ग। कोई अपग्रेडेशन नहीं करना, कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगी, एक बार ले लिया, आपका पूरा परिवार यूज कर सकता है, आपका पड़ोसी यूज कर सकता है, आपके खानदान में जितने लोग हैं उतने यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अनगिनत बार यूज कर सकते हो, बट एट ए टाइम एक ही आदमी यूज कर सकता है। जैसे ये यूज कर रही हैं तो इस समय बाकी लोग यूज नहीं कर सकते। ये जो डिवाइस है सब में एक ही डिवाइस है, लेकिन प्रोग्राम्स कम ज्यादा होते हैं। अभी मेरे पास जो डिवाइस है ये है प्रोफेशनल। कौन सी? प्रोफेशनल। इसमें कितने प्रोग्राम्स हैं? 229 प्रोग्राम्स, 6 मॉड्यूल्स हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स? मेन पेजेस हैं, ये सारे पेजेस मेन हैं। इन पेजेस के अंदर भी प्रोग्राम्स हैं। जैसे गोल्ड साइकिल में कितने प्रोग्राम हैं? 7 प्रोग्राम्स हैं। इसी तरीके से सारे प्रोग्राम्स हैं। जब टोटल करते हैं तो 229 प्रोग्राम्स हैं। प्रोफेशनल के बाद आता है रेजोनेंस प्लस। रेजोनेंस प्लस में 123 प्रोग्राम्स हैं, 4 मॉड्यूल्स हैं। रेजोनेंस 97 प्रोग्राम्स है, 2 मॉड्यूल है। हॉलिस्टिक 61 प्रोग्राम्स है, 1 मॉड्यूल है। गोल्ड ओनली 10 प्रोग्राम्स है, 1 मॉड्यूल है। एसेंशियल ओनली 4 प्रोग्राम्स है और उसमें कोई मॉड्यूल नहीं है। प्रोफेशनल की कीमत है 3,29,000। रेजोनेंस की कीमत है 2,06,000। रेजोनेंस की है 1,23,000। हॉलिस्टिक की कीमत है 82,000। गोल्ड की कीमत है 41,000 और एसेंशियल की कीमत है 22,400। सितंबर 1 तारीख से 30 तारीख तक इसमें और इसमें 35% का डिस्काउंट है। तो कितनी कीमत हुई? इसकी कीमत हुई जो 3,29,000 का है, 3,29,000 का 2,14,000। इसकी 2,06,000 है, इसको डिस्काउंट होने के बाद कितने की पड़ रही है? 1,32,000। जिसकी कीमत 1,23,000 है, इसकी डिस्काउंट होने के बाद 81,000 है। क्यों? क्योंकि 229 प्रोग्राम से मिल रहे हैं 2,14,000 में। डिवाइड करो एक प्रोग्राम की कीमत कितनी हुई। और यहीं पे अगर आप ये लेते हो तो 4 प्रोग्राम की कीमत 22,400, मतलब एक प्रोग्राम की लगभग 6,000 रुपए। तो सबसे महंगी तो ये हुई। और प्रोग्राम क्या है वो आप समझ लोगे तो आप समझ जाओगे कि सबसे जरूरी आपके लिए कौन सा डिवाइस है। डिवाइस सबके लिए यही रहेगा, इसमें भी यही डिवाइस आएगा। प्रोग्राम्स पेजेस समझिए। प्रोग्राम जो आपको बताया था अभी, सबसे पहले गोल्ड बताया था, उसमें 7 प्रोग्राम थे। तो ये वो 7 प्रोग्राम: प्योर, केयर, बीइंग, बैलेंस, रिलीज, रिलैक्स और एनर्जी। ये प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम कैसे काम करते हैं? ये सारे आईएमएफ प्रोग्राम है। यहां देखेंगे आप तो ये सब आईएमएफ प्रोग्राम है। ये आईएमएफ प्रोग्राम नहीं है, देखिए सबके आईएमएफ प्रोग्राम में लिखा हुआ है आईएमएफ। ये सब आईएमएफ प्रोग्राम्स है, ये नहीं है, ये है। आईएमएफ का मतलब होता है इंडिविजुअली माइक्रो करंट फ्रीक्वेंसी देना, आपको आपके हिसाब से और जिसको दोगे उसके हिसाब से। प्योर आपके प्योरिफिकेशन ऑर्गन्स पे काम करता है, जो होता है लंग्स, किडनी और पेनक्रियाज। केयर आपके हार्ट में काम करता है, दिल। बैलेंस आपके जितने ऑर्गन्स हैं उनको सिंक्रोनाइज करता है, आपस में कम्युनिकेशन स्ट्रांग बनाता है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ योर ऑल द ऑर्गन्स। इसके अलावा बीइंग जो है, आपकी एनर्जी बॉडी जो बायोलॉजिकल बॉडी को चला रही है, उन दोनों को फाइन ट्यून करता है, उसको अलाइन करता है। एनर्जी बॉडी आपका जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, जब सुबह सो के उठते हो तो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल चार्ज होना चाहिए, एमिनो एसिड का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ना चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ना चाहिए, डीप स्लीप आनी चाहिए। वो क्या होता है, ये हमेशा प्रोग्राम सुबह लेना चाहिए एनर्जी का, जो आपकी सीधी एटीपी प्रोडक्शन पे काम करती है। रिलैक्स और रिलीज, जो भी आपके बॉडी में टॉक्सिस हैं उनको क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, रिलीज करेगा। इंसोमेनिया मतलब रात को नींद ना आना, लोग नींद की गोलियां खाते हैं। क्रॉनिक पेन है तो ले सकते हो, बैक पेन है तो प्रोग्राम ले सकते हो, दांतों में दर्द हो रहा है एक प्रोग्राम लेना है, कहाँ आपको जॉइंट लोकल का एक प्रोग्राम लेना है और दर्द वैनिश या कम हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपको 2-3 प्रोग्राम लेना पड़े, बैक टू बैक 2-3 प्रोग्राम भी ले सकते हो आप।
करेक्ट। IMF प्रोग्राम को 2-3 बार नहीं लेना है, 4-5 घंटे के गैप में लेना है, जिसमें आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे वो। लर्निंग, बच्चे छोटे हैं आपके, तो लर्निंग उनकी सही नहीं है, तो लर्निंग के प्रोग्राम दिए जा सकते हैं। इसमें IMF प्रोग्राम भी है और एक्यूट भी है। IMF का मतलब होता है आपकी प्लान्ड वे में करता है, आपके शरीर के मतलब रूट में काम करता है। और एक्यूट क्या है, जैसे लर्निंग की उस समय बच्चे को जरूरत है इमीडिएटली, तो एक्यूट का प्रोग्राम देना है। फॉर एग्जाम्पल, और बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिस्ट का प्रोग्राम नहीं, आपको एक्यूट देना पड़ेगा। और अगर आपने ये 2-4 महीने दे दिया, इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। क्यों? क्योंकि बॉडी चली जाएगी किसमें? ऑटो मोड में। कॉन्सेंट्रेशन, एक्यूट एंड सिस्ट। अगर बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, जो शुरू में मैंने बताया था, बॉडी, माइंड और सोल, बच्चा साल भर पढ़ रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, प्रोग्राम कौन सा लेना चाहिए उसको? एग्जाम सिस्ट का लेना चाहिए या एक्यूट का? एक्यूट मतलब अभी इस समय अगर एग्जाम है तो ले लो, और अगर आप सिस्ट के लोगे तो एक्यूट की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेस, पेरेंट्स भी स्ट्रेस दे रहे हैं पढ़ाई का, पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से भी है, और उसके साथ में जो बच्चा बैठा हुआ है वो भी दे रहा है, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? लो। कॉन्फिडेंस लो होना मतलब वाइब्रेशन का गिरना। वाइब्रेशन क्या है? फ्रीक्वेंसीज हैं। फ्रीक्वेंसीज क्या है? बॉडी, माइंड और सोल का अलाइनमेंट है। जैसे ही ड्रेन आउट हुआ तो आपकी फ्रीक्वेंसी लो हुई, और आप उस मूड में नहीं आ पाओगे, उस मोड में ही नहीं आ पाओगे जो आपको परफॉर्म करती है। फिटनेस, हेल्थ और फिटनेस दो अलग अलग चीज है। अगर कोई यहाँ पे स्पोर्ट्समैन है, 14 दिन की मनी बैग में केवल ये इसका यूज कर ले, खूब हाइड्रेट रहे, पानी खूब पिए, और सुबह शाम ये प्रोग्राम यूज करे, तो उसके परफॉर्मेंस में वो बताएगा कि क्या परिवर्तन आया। जॉब एंड स्लीप, बहुत गजब का प्रोग्राम है ये। पॉजिटिव थॉट, हफ्ते में 2 बार अपने परिवार के सारे सदस्यों को देना चाहिए। जैसे मेंटल बैलेंस है एक्यूट, किसी तरह का मेंटली कोई डिस्टर्ब हो, अपना नाम भूल चुका हो, बच्चों का नाम भूल चुका हो, बिल्कुल मेंटल डिसऑर्डर में, उसके लिए वरदान है ये। 3-4 महीने में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। ब्यूटी हमारे लिए कितना जरूरी है, महिलाओं का बहुत फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? क्योंकि शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन क्या होता है? स्किन। स्किन के प्रोग्राम ले सकते हो। महिलाओं की आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, झाइयां ब्लैक ब्लैक आ जाते हैं ना। अगर 10 साल, 20 साल, 30 साल पुरानी भी है, आप सिर्फ और सिर्फ महीने 2 महीने के अंदर उसको गायब कर सकते हो। और प्रोग्राम कौन सा लेना है आपको? 1, 2, 3, 4, 5 और 3 आगे और आएंगे। टोटल कितने हो गए? 8-9 प्रोग्राम बस। एक्चुअली क्या कर रहा है ये बॉडी के अंदर, समझ रहे हैं आप लोग? रीजनरेशन का काम कर रहा है। स्किन के बाद बायोजेनेटिक हार्मनी, ये हमारे फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है। फर्स्ट एड बॉक्स रखते हो आप घर में, केमिकल का डब्बा, मालूम है क्या होता है वो? जहर का डब्बा। आप कभी जो दवाइयां रखते हो ना, कि बच्चे को बड़े कॉन्फिडेंटली बोलते हो कि नहीं बेटा पेट दर्द दे रहा है, ये दवाई खा ले ठीक हो जाएगा, मालूम है कभी उसको पढ़ना जूम करके उसके अंदर क्या लिखा होता है? वो बड़ा शाइनिंग करता है, इसीलिए ज्यादातर लोग पढ़ ही नहीं पाते। जब आप उसको पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि कितना डेंजरस है, और उसमें सब में लिखा रहता है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, फिर भी आप खाते हो। हर दवाई में लिखा होता है ये, क्योंकि वो रूल्स हैं, उन नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है। हम भी बोलते हैं वी डोंट क्योर, हम किसी डिसीज को ठीक नहीं करते। यहां हम क्या कर रहे हैं? आपकी बॉडी को अलाइन कर रहे हैं। अगर जड़ों में काम हो गया तो अपने आप वो सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे, और वो जो डिसबैलेंसेस है वो खत्म हो जाएंगे, जो रोग है वो खत्म हो जाएगा। ये टॉन्सिल्स है, बैक्टीरिया है, गैस्ट्रोंटाइट, गैस की समस्या होती है तो प्रोग्राम ले सकते हो। प्रोग्राम लेना, गैस की प्रॉब्लम है ज्यादा, प्रोग्राम ले लो। टॉन्सिल्स की समस्या आ रही है, प्रोग्राम ले लो। फूड सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, लिवर का प्रोग्राम लो। टॉक्सिस हैं बॉडी में, उसके ले लो। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट की समस्या आजकल 70-80% मर्दों को है, प्रोग्राम ले लो। 10-15 दिन प्रोग्राम लोगे यूरिन के लिए, रात को नहीं उठना नहीं पड़ेगा। मेरिडियन, मेरिडियन का मतलब होता है नाड़ी तंत्र। शरीर में कई नाड़ियां होती हैं, ये यहां से लिया जाता है, देखिए प्रोग्राम ले रही है वो यहां से। ये 3 तरीके की नाड़ियां होती हैं, इनसे ही प्रोग्राम लेना है आपको। लिवर सोराइसिस है, लंग्स का एक्टिविटी करनी है, लार्ज इंटेस्टाइन में करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में करना है, एवरीथिंग। आपको सिर्फ ये बैंड लगाना है। चक्रास, आपके शरीर के चक्रास को बैलेंस करता है। 7 तरह के चक्रास होते हैं हमारे, रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक। बायोजेनेटिक डिफेंस, कौन है जो भूत पे नहीं करता है विश्वास? भूत है क्या? नेगेटिव एनर्जीज। जैसे शमशान घाट से जब आप आते हो घर, तो हैवीनेस लगती है, होता है ऐसा? क्रिमेशन या कोई भी संस्कार के बाद आते हैं
तो वो हैवीनेस क्या होती है? नेगेटिव एनर्जी। अगर आपने जनरल प्रोडक्शन का प्रोग्राम रन किया, जिस एनर्जी में जाओगे उसी एनर्जी में वापस आओगे आप। बायोनेटिक सपोर्ट ये कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दिया था 2019 में, क्योंकि उस समय कोविड का बड़ा प्रकोप था। तो ये बूस्ट, बायोनेटिक बूस्ट अगर लेके चलते हैं तो अपने को ये सब मुंह में लोग लगाते हैं ना, पट्टे अट्टे बांध के, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, फ्रीक्वेंसी के लेवल को बढ़ाना है। इसका भी एग्जाम्पल अगर लंच के बाद हुआ, आप लोग आए तो दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। कोहेरेंस एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। कोहेरेंस स्टेट होना मतलब आपका ब्रह्म से कनेक्टिविटी होना। जैसे आप मेडिटेशन करने बैठते हो तो आप इमीडिएटली कनेक्ट हो सकते हो। पावर ऑफ 3 बहुत सारे हैं इसमें मोटा मोटा समझ लो आप, कफ पित्त और वात। शरीर के कफ पित्त वात अगर आपने बैलेंस कर लिया तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? अलाइन हो जाएगी। ये वो फ्रीक्वेंसीज, अल्फांजो फ्रीक्वेंसीज। सन से जो रेज लेते हैं उनको बोलते हैं फोटॉन्स। वो रेज होती हैं, वो एक फ्रीक्वेंसी होती है, आपकी स्किन में पड़ती है। और D3 प्रोड्यूस करता है आपका लिवर। तो D3 कहां था? लिवर में, लेकिन डीएक्टिवेट था। वो जब रेस पड़ी तभी वो एक्टिवेट हुआ। तो बॉडी में सब कुछ है, सारी चीजें हमारे शरीर में होती हैं। आपको बाहर की जरूरत नहीं होती है। आपका शरीर बना है 5 तत्वों से, वही 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। अगर ये ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर संतरे के अंदर विटामिन सी पैदा कर सकता है, तो आपकी बॉडी के अंदर क्या विटामिन सी पैदा नहीं कर सकता? डिजिटल न्यूट्रिशन के ये 72 प्रोग्राम्स हैं। सबसे बड़ी ताकत है इस प्रोग्राम की, ये केवल और केवल प्रोफेशनल वर्जन में मिलता है, जो 3,29,000 का है, सिर्फ उसमें मिलता है। ये जो अल्फांजो फ्रीक्वेंसीज बताई थी मैंने, वो ये बायोनेटिक ऐसे कुछ जो जनरल प्रोडक्शन के प्रोग्राम्स हैं, ये उसमें ही मिलते हैं। ये उसको यूनिक और डिफरेंट बनाते हैं। और ये सब 100% IMF प्रोग्राम्स हैं। IMF मतलब इंडिविजुअली लेवल पे काम करेगा, आपके बेटे को बेटे के हिसाब से काम करेगा, पिता को पिता के हिसाब से। अगर आपको मान लिया एसिडिटी हो रही है तो क्या करना है? आपको एल्कलाइन पाउडर का प्रोग्राम लेना है, और एमिनो एसिड कम है तो उसका प्रोग्राम लेना है, एल्कलाइन पाउडर लेना है। मान लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम आपका डिस्टर्ब है तो उसका प्रोग्राम लेना है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, स्पिरिचुअलिटी, वेट, ब्लड का अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रोग्राम लेना है। ऐसे अनगिनत प्रोग्राम है। सेक्स डिसऑर्डर्स हैं तो लिबिडो का लेना है। बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो पोटेंसी का लेना है, मेंस एंड वुमेन्स। इसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, चिल्ड्रंस का प्रोग्राम ले लो। स्लीप डिसऑर्डर है, स्लीप के ले लो न्यूट्रिशंस। बॉडी में सोने के लिए भी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, तभी तो आदमी कमजोर होता है। कमजोर होता है तो नींद नहीं आती, तो इसका मतलब है न्यूट्रिशंस वहाँ भी चाहिए। तो आपको ये डिजिटल न्यूट्रिशन जो है, ये वही है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 में बताया गया। डिजिटल मेडिसिन वो यही है, 72 तरीके के। जब 2020 में जब डिस्कशन हो रहा था तब हमारी कंपनी इस पे काम करके सामने प्रोडक्ट ला दी, और आज तक दुनिया में इसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। कोई भी IMF बेसिस पे काम नहीं करता। करेक्ट? अब किसी भी तरह का कोई भी आपके लॉजिकल, इलॉजिकल, साइंटिफिक, अनसाइंटिफिक अगर सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, और उसके बाद लंच एंजॉय करो। थैंक यू।